हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। First of all, I would like to apologize for the past 2, 3 sessions. I've been delaying the start of the sessions by about 10 minutes as I'm repeatedly getting held up for certain things. I'll try my best to start the sessions on time 8:50, but it was inevitable for the last 2, 3 times. So we are continuing to discuss chapter 16, the divine and demoniac uh, qualities, or divine and demoniac persons, about the nature of uh, demoniac people and divine people. तो दैवी संपद लोग और आसुरी संपद लोग, उनके गुणों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में 16वें अध्याय का हम निष्कर्ष कर रहे हैं। पहले 3 श्लोका जो 3, 4 क्लासेस हमको करना पड़ा, because Prabhupada has given so much weightage for this discussion that he wrote a 6-page purport. So I didn't want to cut down. I wanted to discuss it in as much detail as Prabhupada has given. So दैवी गुण, दैवी प्रकृति के बारे में जानने के बाद 26 से ज्यादा जो आंकड़ों के अनुसार कृष्णा ने गिनवाया हमको, इस श्लोक 4थे श्लोक में हमें आसुरी संपद गुणों के बारे में पता चलेगा। So we'll straight away start with the discussion of the 4th shloka in this chapter. Dhambo darpo abhimanascha krodha parushyamev cha agnanam chabijatasya partha sampadam asurim। दैवी गुण 26 स्वभाव के बारे में कृष्णा गिनती करने के बाद थैंकफुली आसुरी संपद जो है, क्वालिटीज है, वो एक ही श्लोक के बराबर है। मीन्स few qualities which are considered as asuri in nature. What are those? Dambha, Darpa, Abhimana, Krodha, Parushya, and Agnana. It gives rise to Agnana, and this is considered as Asuri Swabhava, the nature that is demoniac. So we will read the translation. Arrogance, pride, anger, conceit, harshness, and ignorance. कितने गुण हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 गुण। च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। हे पार्थ, हे अर्जुना, आसुरी स्वभाव 6 तरीके के होते हैं। What are the 6 types? Dambha, that is pride. Darpaha, that is arrogance. Abhimana, is conceit. Krodhaha, that is anger. Parushyam, that is harshness. And Agnanam, that is ignorance.
चाभिलास च अभिजातस्य, one who is born. So nature is demoniac. Sampadam asurim. So this shloka talks about the royal road to hell, जो नरक की ओर जाने वाले रास्ते, हाईवे है, रॉयल रोड है, जो राजमार्ग है, इसके बारे में कृष्णा ने यहाँ पे उल्लेख किया और पापा जी हमें भावार्थ में समझाएंगे. सो दिस हाईवे, द रॉयल रोड टू हेल has got 6 lanes. What are the 6 lanes? Damba, Darpa, Abhimana, Krodha, Parushya, Agnana. So in this verse, the royal road to hell is described. The demonic want to make a show of religion and advancement in spiritual science, although they do not follow the principles. So here, Prabhupada is telling something very interesting. The demoniac person is not necessarily a person who is not religious, is not a person who is not in spiritual line. And he has made a observation here. They make a show of religion. धर्म का वो क्या बोलते हैं, ढोंग रचाते हैं. एंड एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस, ऐसे दिखाते हैं आध्यात्मिक, वो बहुत ही आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही पहुंचे हुए लोग, लेकिन अंदर से वो असुर स्वभाव के हैं. Why? Because they do not follow the principles. जो नियम है, जो भक्ति मार्ग का नियम है, उसको वो फॉलो नहीं करेंगे, तो उसमें रहते हुए भी फॉलो नहीं करेंगे. दिस इज ऑल्सो एन आसुरी स्वभाव. दे आर ऑलवेज एरोगेंट, आर प्राउड इन पोजेसिंग सम टाइप ऑफ एजुकेशन और वेल्थ. तो अपने भौतिक जो पोजिशंस है, उसके बारे में दम्भ और दर्पा से भरे हुए हैं. They desire to be worshipped by others. So earlier we talked in Daivi Sampada, na ati mahanita. Whereas demonic quality is always desiring honor. So हमेशा दूसरों से गौरव चाहते हैं और दूसरों से पूजा कराना चाहते हैं. पूजा, प्रतिष्ठा, लाभा, ये 3 गुण हैं जो हमें कृष्णा को भूलने के लिए मजबूर करेगा. So although they do not command respect, they demand respect. हिरण्यकशिपु, तो उसको उनके प्रजा भय के कारण पूजा और उसका सम्मान करती थी. नॉट दैट ही डिजर्व. तो प्रजा को पता था कि वो नालायक, वो असुर है, लेकिन भय के कारण वो सब उनके पूजा करते थे, क्योंकि उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई भगवान का पूजा नहीं होगा, और अगर होगा पूजा केवल हिरण्यकशिपु का पूजा होगा. हिरण्यकशिपु का मंदिरे बने उस समय, और वहां पे हिरण्यकशिपु का पूजा हो रहा था. और ट्राइफल्स दे बिकम एंग्री. छोटी छोटी विषयों पे क्रोधित हो जाते, कुपित हो जाते. एंड दे स्पीक हार्शली नॉट जेंटली. और दूसरे लोगों के साथ बहुत ही क्या बोलते हैं, वर्ड कठिन स्वरूप दिखाते हैं. दे डू नॉट नो व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन. तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ पता नहीं. दे डू एवरीथिंग whimsically. जो भी कार्य करते हैं बिना सोच समझ के करते हैं. एंड दे डू अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर एंड डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी अथॉरिटी. अपनी इच्छा के अनुसार वो काम काज करते हैं. कोई क्या बोलते हैं, एल्डरली एडवाइस नहीं लेते. किसी के किसी क्या बोलते हैं, बुजुर्ग के, गुरु के, वो कोई भी सलाह नहीं लेते. These demonic qualities are taken on
by them from the beginning of their bodies in the wombs of the mother. और ये असली स्वभाव कहाँ से आ रहा है? उनको जन्म से ही ऐसा स्वभाव है। And as they grow, they manifest all these inauspicious qualities. और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, बाल्य फिर यौवन की अवस्था में आते हैं, उनके सारे जो असली गुण हैं वो बाहर आ जाते हैं। So they are born with this demoniac tendencies, which is coming from past life experiences and past life कर्मा। तो पूर्व जन्म के कर्म के वजह से माँ के गर्भ से ही वो ये सारे जो आसुरी स्वभाव है वो लेके पैदा होते हैं, और धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ता है ये सारे लक्षण दिखना प्रारंभ होता है। So then Krishna continues. We will move on to shloka number 5. दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता माशु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडवा। तो अर्जुन को पांडवा ऐसे बोलते हुए कृष्ण अपना उपदेश आगे बढ़ा रहे। दैवी संपद विमोक्षाय, द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर लिबरेटिंग। मोक्ष का प्रदान करता है दैवी गुण। फिर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कंड्यूसिव टू लिबरेशन। मोक्ष के हकदार बनता है जब दैवी गुण संपन्न होता है कोई। whereas demonic qualities make for bondage। निबंध या आसुरी मता। तो आसुरी जो गुण है स्वभाव है निबंधा, तो उसको भौतिक जिंदगी में बांध देता है। डू नॉट वरी। तो कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में सोचिए मत। मां शुचा, क्यों? फॉर यू आर बॉर्न विद डिवाइन क्वालिटीज संपदम दैवीम अभिजातोसि। हे पांडवा, आप और अर्जुन, आप और बाकी सारे पांडव कैसे गुण लेके पैदा हुए हैं? दैवीम संपदा, तो पैदाइशी दैवी गुण है उनके अंदर। तो कृष्ण सुनी मां शुचा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लॉर्ड कृष्णा encouraged Arjuna here by telling him that he was not born with demonic qualities। आसुरी स्वभाव उनके अंदर नहीं है। His involvement in the fight was not demoniac। इसलिए वो युद्ध भूमि में जब युद्ध करेंगे तो आसुरी स्वभाव से वो युद्ध नहीं करेंगे। Because he was considering the pros and cons, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था कि ये युद्ध लड़ने लायक है कि भी नहीं। Was considering whether respectable persons such as Bhishma and Drona should be killed or not। कि मेरे बुजुर्ग, मेरे पूजनीय भीष्म और द्रोण, इनकी हत्या मुझे करना चाहिए कि नहीं। और he was so he was not acting under the influence of anger, false prestige or rashness। तो क्रोध, पारुष्य और दंभ, अभिमान, दर्प, ये सारे गुण के नशे में ये युद्ध नहीं लड़ रहे थे अर्जुन। Therefore, it was not the quality of demons। For a kshatriya, a military man, shooting arrows at enemy is considered transcendental। Refraining from such a duty is demoniac। क्षत्रिय को धर्म निभाते हुए बाण को शत्रु के ऊपर छोड़ना एक दैवी गुण है। बिकॉज उसका कर्तव्य है अपने प्रजा का रक्षण करना। और अगर वो, यदि वो नहीं करता ऐसा कि अपने प्रजा की रक्षण करते हुए वो अगर जो असुरी लोग हैं उससे लड़ेगा नहीं, तो वो खुद असुरी स्वभाव है। तो इट विल लाइक सपोर्टिंग द डेमोनियक टेंडेंसी पीपल। So supporting them is equal to being like them। Therefore, there was no cause for Arjuna to lament। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये युद्ध असुरी स्वभाव की वजह से नहीं लड़ रहे। बाकी वहां के लोग, बहुत सारे लोग इस स्वभाव की वजह से
ये युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आप दैवी संपद के गुण है आपके अंदर, तो अभिजातस्या, यू आर born with these qualities, you and the other Pandavas, so you don't have to worry. Anyone who performs regulated principles of different orders of life is transcendently situated. तो इस जगह पे अर्जुन जब युद्ध लड़ेगा, क्योंकि ये गर्म युद्ध है और कृष्णा इसका नेतृत्व कर रहे हैं, आफ्टर क्लोजिंग ऑल ऑप्शंस ऑफ पीस बाय दुर्योधना, दुर्योधना ने शांति के सारे मार्ग को बंद कर दिया था। जब युद्ध भूमि में बिना शस्त्र पकड़े कृष्ण नेतृत्व कर रहे, मार्गदर्शन कर रहे पांडवों का, खास तौर पे अर्जुन का। और इस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे अर्जुन इस वक्त क्या बोलते हैं, द्वंद्व में है कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें दुष्परिणाम मुझे ज्यादा दिख रहा है, कोई अच्छे परिणाम मेरे लिए नहीं दिख रहा है। राज्य तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे अपने लोगों को मार के मुझे राज्य पाने से तो उनके रक्त के लेपित होगा मेरा ये जो विजय है, तो मुझे ऐसा विजय नहीं चाहिए। पहले और दूसरे अध्याय में ही उन्होंने बता दिया। So this war that is being fought by the Pandavas, especially the Pandavas, are not fighting it having any of the 6 Asuri qualities that we discussed in the previous shloka. We'll move further. Shloka number 6. Dvabhuta sargo lokesmin daivasura eva cha daivo vistarasha prokta asuram partame shrunu. तो दाव भूत सर्गो, तो ये भौतिक जगत में 2 तरह के जीव हैं। द्वाव भूत सर्गो लोकेस्मिन, इस भौतिक जगत में 2 तरह के क्या बोलते हैं, भूत गण होते हैं, जीव होते हैं। सो क्या है क्या दो दो वर्ग क्या है, दैव आसुर एव च, डेमोनिक पीपल, डिवाइन पीपल, people having demonic qualities, people having divine qualities. असुरी संपद लोग, दैवी संपद लोग। तो दैवो विस्तरश प्रोक्ता। So I have already explained to you at length the divine qualities. पिछले फर्स्ट 3 श्लोकास, पहले 3 श्लोक में 26 गुणों के आधार पे दैवी स्वभाव का वर्णन कृष्णा ने किया है, और ये बता रहे अर्जुन को दैवो विस्तरश प्रोक्ता, पहले ही बोल दिया मैंने। आसुरम पार्थ में सुनो, अब मैं आसुरी स्वभाव के बारे में बात करूंगा, आप सुनिए अर्जुना। तो आसुरी स्वभाव के 6 गुण उन्होंने बता दिया ऑलरेडी। Lord Krishna having assured Arjuna that he was born with divine qualities, is now describing the demoniac way. तो अर्जुन को समझाने की कोशिश करिए कि असुर स्वभाव क्या है, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या मैं असुर स्वभाव के हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, सब विपरीत दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए कृष्ण उनको बोल रहे नहीं नहीं अर्जुना, तुम तो दैवी संपद गुण के हो, तुम्हारे अंदर कोई असुरी स्वभाव नहीं है। असुर स्वभाव मतलब ये 6 गुण है, इसके बारे में अब मैं विस्तार से बताऊंगा, सुनोगे। Those who are born with divine qualities follow regulated life. गोपा जी बता रहे हैं, कानून नियम का पालन करते हैं दैवी संपद लोग। They follow the rules and regulations. They are good citizens. And they are the good devotees of the Lord. They abide by the injunctions in the scriptures and authorities. शास्त्र में दिए हुए नियमों को पालन करते हैं। गुरु और गुरु और जो बुजुर्ग हैं और उनके घर के जो एल्डरली लोग हैं उनकी बात वो सुनते हैं। ये कौन, दैवी संपद लोग। One should perform duties in the light of authoritative scriptures. और पापा जी बोलते हैं शास्त्र, साधु, गुरु, इन तीनों के मार्गदर्शन में हमें कार्य करना चाहिए। असुरी स्वभाव के लोग ऐसे नहीं करते। So one who does not follow the regulative principles and who acts according to his whims is called demoniac or asura. तो जो
शास्त्र को मानता नहीं है, जो गुरु के मार्गदर्शन से चलता नहीं है, तो वो असुर है। फर्दर, there are no criteria, no other criteria but obedience to regulative principles of scriptures. It is mentioned in Vedic literature that both the demigods and demons are born of Prajapati. दोनों प्रजापति के ही संतान है। हाँ, प्रजापति स्वयंभुव मनु। हाँ, और क्या बोलते हैं, जो सृष्टि प्रारंभ हुआ, जब मतलब सारे जो योनिया का सृष्टि होना था, तो प्रजापति के द्वारा वो हुआ। और, और उनसे ही दैवी संपद गुण के लोग भी आए और असुरी संपद गुण के लोग भी आए। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट वन क्लास ओबेज वैदिक इंजंक्शंस, अदर डज नॉट। तो एक वर्ग जो शास्त्र को मानता है, गुरु को मानता है, और साधुओं का जो क्या इज्जत करता है, दूसरे, और वो है दैवी संपद लोग। असुरी संपद लोग इसके तद विरुद्ध है, विपरीत है। सो कृष्णा फर्दर कंटिन्यूस इन श्लोका नंबर 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदु आसुराः, न शौचं न अपि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। देखो अर्जुना, असुरी संपद के लोग कैसे होते हैं? तो प्रवृत्तिं च विवृत्तिं च न विदुर जना, ऐसे जन, असुरी असुर जन, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, इसके बारे में कोई विद्या नहीं है उनके पास, जानकारी नहीं है। और अगर है भी तो वो उसका पालन नहीं कर रहे। ना शौचम, देयर इज नो क्लीनलीनेस। तो इट वाज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिवाइन क्वालिटी, शौचा। न अपि च आचारो, और आचार विचार तो होता ही नहीं। दे डोंट दे डोंट फॉलो स्क्रिप्चर्स। न सत्यम, सत्य एक ये रिक्वायरमेंट था दैवी संपद गुण के। जब बात कर रहे थे तो यहाँ पे कृष्णा बोलते हैं उनके अंदर सत्य, मतलब ये गुण नहीं होता है। सो देयर इज नो ट्रुथ इन देम, दे डोंट स्पीक ट्रूथ, दे आर ऑलवेज लाइंग, दे आर ऑलवेज चीटिंग पीपल। तेषु विद्यते, तो उनके अंदर ये स्वभाव होता है। Those who are demonic do not know what is to be done and what is not to be done. क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उनको पता ही नहीं है। Neither cleanliness, न शौचम, न अपि च आचारो, न प्रॉपर बिहेवियर। नो, मतलब उनको कैसे, मतलब लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, उनको पता ही नहीं। नॉट ट्रूथ इज फाउंड इन देम, और कोई सत्य का कोई भी अंश भी उनके अंदर नहीं है। सो Prabhupada has elaborated on this purport. So we will just discuss the purport slightly in detail and check if we can do one more shloka. So in every civilized human society, Prabhupada ji बता रहे हैं, there is some set of scriptural rules and regulations. मतलब नागरिक, मतलब जो कानून को, कानून का पालन करते हैं। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो। फॉर a good citizen will follow all this. So these people are divine people, that they follow systems laid down, and here the higher systems are being talked of, systems set by the Shastra. Then they are followed from the beginning, especially from the Aryans who adopt the Vedic civilization. तो वेद संस्कृति का सम्मान करते हुए जो ऐसे जीवन बिताता है, तो आर्य है, दैवी संपदा गुण का व्यक्ति है। दे आर नोन टू बी एज द मोस्ट एडवांस सिविलाइज्ड पीपल। ऐसे लोग उच्च स्तर के नागरिक हैं। Those who do not follow scriptural injunctions are supposed to be demons. जो
शास्त्र को फॉलो नहीं करते वो राक्षस हैं, असुर हैं। तो demons do not know scriptural rules, nor do they have any inclination to follow them. ना वो शास्त्र के विचार को जानते हैं, ना उसका पालन करने के योग्य हैं। Most of them do not know them, and even if some of them know, they do not have the tendency to follow them. तो ऐसा नहीं है कि अ, असुर को वेद ज्ञान नहीं होता है, बहुत एक लोगों को नहीं होता है, और कुछ लोग जो वेद ज्ञान रखते हैं उसका पालन वो नहीं करते। एक दो ऐसे उदाहरण हैं जो हम सब जानते हैं। एक तो हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ब्राह्मण का बेटा है, कश्यप मुनि का बेटा है। ये हमें सोचना चाहिए। कश्यप मुनि एक ब्राह्मण ऋषि का वो बेटा है, और क्योंकि वो आश्रम में है तो वो सारे वेद को जानता था। ही न्यू ऑल द वैदिक शास्त्रस। जब माँ दिति दुखी थी, सॉरी, दिति दुखी थी हिरण्याक्ष के वध के बाद, तो हिरण्यकशिपु आके उनको वेद ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ, कि मरना जीना ये तो होना ही है। कौन मृत्यु से मतलब बच चुका है, ऐसे बात वो माता दिति के साथ करते हैं, लेकिन अंदर से वो असुर है। दूसरा एग्जाम्पल है रावणा। रावणा भी एक ऋषि मुनि का पुत्र था, सारे वेद वो जानता था। ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन all the shastras, but he never followed them. That's the difference. Knowing is not therefore everything. Following what we know, what should be known, is everything. So the demons are not clean either externally or internally. शौचा अंदर से भी शुद्ध नहीं है, बाहर से भी शुद्ध नहीं है। They don't take bath. मतलब there are examples of people who don't take bath for months. And they're okay with it. उनको वो ठीक है, उसमें कोई सोचने के विचार है ही नहीं उनके लिए। So one should always be careful to keep his body clean by bathing, brushing teeth and changing clothes. तो हमारे बाहरी शौच के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। नहाना चाहिए दिन में 3 बार। वेद शास्त्र बोलता है दिन में 3 बार नहाना चाहिए। कलयुग में दिन में 1 बार नहाना एक लग्जरी है। एटलीस्ट दैट मच वी शुड डू। ट्वाइस अ डे शुड बी ट्राई टू फॉलो। शाम को भी नहा के फिर तिलक सब लगा के एक छोटा आरती करके, अगरबत्ती वाला भी आरती करके हमें रहना चाहिए। दैट इज आइडियल। और दांत मंजन करना चाहिए, फ्रेश कपड़े पहनना चाहिए। So this is divine quality. As far as internal cleanliness is concerned, one should always remember the holy names of God and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So अंदर से शुद्ध होने के लिए कलयुग में सबसे आसान तरीका, सबसे क्या बोलते हैं जो प्रभावशाली तरीका है हरे कृष्णा मंत्र जपा। भगवान की लीला का स्मरण, भगवान की नाम का उच्चारण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। That's why all the acharyas in our lineage have laid so much importance for chanting the holy names of the Lord, especially Hare Krishna mantra, and to always listen, Shravana, the holy names of the Lord, the Leela of the Lord, the Guna of the Lord, the glories of the Lord. So the Shastra is recommending. Demons neither like nor follow all these rules for external and internal cleanliness. जपा तो दूर की बात, वो तो भगवान का नाम को भी याद नहीं रखते हैं असुर असुर वर्ग के लोग। As for behavior, there are many rules and regulations guiding human behavior. तो नागरिक मतलब कायदे कानून से चलना चाहिए। और मानव समाज के लिए द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूमन काइंड इज मनुस्मृति। मनुस्मृति
सो इट इज द लॉ ऑफ ह्यूमन रेस। तो मानव समाज के लिए कानून मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका संपूर्ण वर्णन मनुस्मृति में है, मनुसंहिता में। सो इवन अप टू टुडे दोज हु आर हिंदू फॉलो मनुसंहिता। मनुसंहिता आज भी कुछ हिंदू धर्म के लोग उनको मानता है। इन मनुसंहिता it is clearly stated that a woman should not be given freedom। तो मनुसंहिता में ये शासन है कि औरत को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ इसका मतलब है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, इट इज नॉट ट्राइंग टू लुक डाउन अपॉन वुमेन। ये इसलिए नहीं क्योंकि इससे औरत कुछ गड़बड़ करेगी, ये इसलिए है क्योंकि women are precious in nature, they are very very valuable in human society। तो उनकी रक्षा करना चाहिए। तो जैसे कि एक अत्यमूल्य जो अ, गहना है हमारे साथ, कैसे हम उसका मतलब देखभाल करते हैं, कैसे हम उसको रक्षा देते हैं, बक्से में डालते हैं और एक अलमीरा में रखते हैं, चाबी लगाते हैं। उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे मतलब आउटसाइड खुले में छोड़ देंगे, क्या होगा, कोई उसको चोरी कर लेगा। सो द वुमन कैन बी किडनैप्ड, द वुमन कैन बी harassed, and we know of many such examples even up to recently। we have heard about incidents in a place called Sandesh Kali in uh, West Bengal। Now there it's not because women were given freedom, it is because they were easily accessible to the people who are doing wrong। Now it is not the fault of the woman there, just that the men were not able to protect them, and the mighty hand of the gundas uh, prevailed, and they did all that should not be done। So women should be protected. That is what this means. Women should not be given freedom means women should be given protection at every stage of the life। इसका मतलब ये नहीं कि स्वतंत्र नहीं देना, मतलब ऐसा नहीं कि गुलाम की तरह रखना। बच्चों को हम स्वतंत्र नहीं छोड़ते। क्या हमारे गुलाम है वो, गुलाम की तरह रखते हैं हम? नहीं, क्योंकि बच्चे अकल के कच्चे होते हैं और वो हमारे एक अत्यमूल्य गहने हैं। दे आर सो प्रेशियस टू आवर चिल्ड्रन, सो वी मस्ट ऑलवेज कीप देम प्रोटेक्टेड, वी मस्ट नॉट गिव देम अनड्यू फ्रीडम। वो अपने वो अनजाने में अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा हमारे निगाह बच्चों के ऊपर रखना चाहिए। ठीक वैसे ही मनु संहिता बोलते हैं औरत के ऊपर उसके बाल अवस्था में पिता का निगाह रहना चाहिए, शादी जब हो जाएगा पति की निगाह रहना चाहिए, और जब पति वानप्रस्थ लेके चला जाता है, संन्यास लेके चला जाता है, तो बड़े बेटे का देख रेख में औरत को रहना चाहिए। नॉट बिकॉज शी इज नॉट स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, वो नारी तो शक्ति का प्रतीक है, लेकिन पुरुष का ये धर्म है कि नारी को रक्षण वो दे। So she should be given protection by father in her younger days, by husband in her youth, and by grown-up sons in her old age। She must not be left unprotected। That is the meaning of this। So this is proper social behavior। एक अच्छे समाज का एक लक्षण है, especially मानव कुल का ये लक्षण है। Even in animal kingdom, you can see when the lions live in a pride, तो एक या दो मेल लायंस रहते हैं, सिंह रहते हैं, तो पूरे उस परिवार को रक्षण देते हैं, इंक्लूडिंग द लायनेसेस। सो so even in animal kingdom we see this tendency। So but modern education has artificially devised a puffed up concept of womanly life। now ये मैंने बात किया एनिमल लाइफ में भी। देखिए जानवर में और असुर में अंतर है। जानवर का एक स्वभाव है, वो जानवर की तरह वो बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर भी दया, उसके अंदर भी मतलब अपने कुटुंब परिवार का रक्षण देना है उसको, ये उनके अंदर स्वभाव होता है। लेकिन असुर के अंदर ये स्वभाव नहीं होता है। उसको कभी ये नहीं लगता कि
अपने औरतों को उसको रक्षा देना है, तो बस भोग के विषय बना देता है औरत को। ये असुर का स्वभाव है। ऐसे मानव समाज को नहीं रहना। The demons therefore do not accept any instruction that is good for society. जो भी कल्याणकारी शिक्षा है उसको नहीं मानती है असुर स्वभाव के लोग। तो the social condition of demonic people therefore is very miserable. उनके समाज में के जो स्थिति है जहाँ पे असुर लोग रहते हैं, खुद उनका और उनके साथ जो रहते हैं लोग, उन सबका हालत मतलब शोचनीय हालत है। सो we will try to go further and fit in one more shloka, if not uh, the purport and translation, which can do later. असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। तो कृष्ण बता रहे हैं आगे, दे से दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल। कौन? असुर क्या बोलता है? असत्यम, ये जो लोक है ये असत्य है। देयर इज नो फाउंडेशन, तो उसका कोई कारण नहीं है। अप्रतिष्ठा मतलब समाज और इस सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं है, नो मीनिंग फॉर दिस। एंड देयर इज नो गॉड इन कंट्रोल, जगत आहुर अनीश्वरम। अनीश्वर, ईश्वर के कोई नियंत्रण नहीं चल रहा है। अनीश्वरा, सारे जगत अनीश्वर है, कोई नियंत्रण नहीं चल रहा। ये तो केवल भक्त लोग अपना कहानी बताते हैं, ऐसे वो सोचते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्स डिजायर, ये सृष्टि कैसे बना? अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम, लैंगिक क्रिया की वजह से, एक स्त्री पुरुष के समागम के वजह से ही ये बना है, और कोई कारण है नहीं। कोई भगवान नहीं है सृष्टि करने वाला। सो देयर नो अदर कॉज अदर देन लस्ट किम अन्यत् काम हेतुकम। तो काम की वजह से ही तो हो रहा है सब कुछ। तो काम के वजह से सृष्टि हुआ है, भगवान ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं, ऐसे असुर स्वभाव के लोग सोचते हैं। और ऐसे कृष्ण यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णा इज टेलिंग दिस इज हाउ डेमोनिक पीपल थिंक। चाहे भगवान कुछ भी करे, वो असुरी लोग भगवान को नहीं मानते। जो उनको सारी सुविधा भगवान दे रहे हैं, फिर भी असुर के लोग यही मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब मतलब नेचुरली हो रहा है, ये तो होना है बस। लैंगिक क्रिया से सृष्टि हुआ है, और सृष्टि हुआ है तो हम लोग जी रहे हैं। हम लोग जी रहे तो अपनी शक्ति के बल, शक्ति के आधार पे हम सब अपना अपना वस्तुओं को पा रहे हैं। इसमें भगवान का क्या रोल है? नो रोल ऑफ गॉड। दिस इज हाउ असुरी स्वभाव के, ये असुरी स्वभाव लोगों का सोच है। सो Prabhupada was once asked, why are you struggling so much? Why are you traveling so much? इतना एक्सटेंसिव ट्रैवल आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं इतना भ्रमण कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इस भौतिक दुनिया में भ्रमण ना करना पड़े। मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे शिष्य लोग भौतिक जगत में भ्रमण ना करें, वो बंद हो जाए, इसलिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ हर जगह, भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इस भौतिक भ्रमण से हमें ऊपर उठ के